and welcome to the inaugural ceremony, sir. We're very happy to have you. Without further ado, let me invite Dr. Vidya Yeravekar. As I said, she's the Executive Director and the wind below all our wings at the International Office. She's also the Pro-Chancellor of Symbiosis International University. Dr. Vidya. नमस्ते पोखरियाल जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आप कैसे हैं? थैंक यू सर। मेरी शुभकामना आपको अच्छे कार्यक्रम के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार विद्या। Very honored to have the Honorable Minister for Education, Government of India, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji. We also have with us our own Honorable Chancellor, Dr. S.B. Muzumdar sir, our Vice Chancellor, Dr. Rajani Gupte, the lady who is very excited about internationalization and very passionate about internationalization of higher education, who works with me closely, Dr. Pankaj Mittal, and thank you very much. AIU ke saath we always collaborate. We also have Dr. Anil Kumar Nasa, Member Secretary, National Board of Accreditation, who has brought in the ranking framework for Indian universities. My dear friend Nina Arnold from the World Bank, and Professor Raman, who is the chairperson of Obrial Global, which is a network of global universities and organizations that helps internationalization across the world. Sir, आप आए हैं यहाँ पे, तो we are very very happy. मैं थोड़ा English और हिंदी में बात करूँगी, and I think the revolutionary thing that has happened in India because of this Honorable Minister is the launch of the National Education Policy. And I'm not going to go deep into it because it has been discussed on several occasions, and I'm sure the Minister is going to talk about it even today. But the relevance to internationalization of higher education is that for the first time, this is the first national education policy that has discussed internationalization in great depth. And that is what we are all very, very happy about. I think India can play a very major role. India has always been a sender country, and our students would go across the world. There are more than 10 lakh students who are studying, Indian students who are studying, or I would say were studying in different parts of the world. But we hardly have 47,000 foreign students studying with us. But we all know that mobility does not define internationalization. And this pandemic has actually made us believe that internationalization of higher education is way beyond mobility. And therefore, as we discussed in earlier sessions about internationalization at home, what could we do to the students who could not be mobile, the students who did not have access to global education or international education? What can Indian universities do? And I think this has been discussed in great depth in this chapter on internationalization of higher education in the National Education Policy. We also realized during this pandemic that this is the world of collaboration. We also saw it when the vaccines were manufactured, that no one country could boast and say that this was manufactured totally by us. And therefore, this is a world of collaborations and networks. And we in India also realize the same. And Pankaj Mittal ji and I have worked together on forming an Indian network for international education. सर, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए इस नेटवर्क के लिए, क्योंकि ये भारत का पहला नेटवर्क होगा जो not only Indian universities का होगा, but it will be even our global partners like Obrial Global and several other partners that will want to network, be members of this network. This will bring in a totally different perspective of Indian higher education, which will become an international Indian higher education in the true sense, with this network being developed with the blessings of the Minister and the Ministry of Education. I won't want to take much time because we are here to listen to big stalwarts and of course our Honorable Minister. And therefore, once again, I welcome all of you. We have participants, more than 1,000 participants who got registered. Some of them are here on Zoom. Many are watching us on YouTube. And we purposely kept the conference in the later half of the day so that it suits everybody, because we have delegates from 30 different countries as of now. I mean, I see my friends from Argentina and different parts of South America who have joined, and so also my academic friends from Africa and of course, Europe and other parts of the world. So once again, I welcome all of you to this new chapter of reimagining internationalization.
and the focus, of course, is on blended education. Thank you very much. Thank you, Dr. Vidya. I'd now like to invite Dr. Pankaj Mittal, Secretary General of AIU, to deliver her welcome address. Thank you, Anita ji. Namaskar, pranam to all from India. Most respected Honorable Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, the Chancellor of the Symbiosis International University, Dr. Majumdar ji, the Vice Chancellor, Dr. Rajni Gupte ji, Vidya ji, all the participants who are joining the inaugural function, and all the participants who have joined this international conference, a very warm welcome to all of you to the international conference, which is the 5th in the series. We have been holding international conferences for the last 5 years and mostly on internationalization of higher education. So this is the 5th conference in the series. So a very, very warm welcome to all of you. Since Dr. Vidya has spoken in English, so I will try to welcome all of you in Hindi, and I will try to prefer speaking in Hindi. So the foreign delegates, please excuse me for that, but we are trying to speak in our national language, that is Hindi. So sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत यहाँ पे इस प्रोग्राम में. नमस्कार. सर, जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो है री इमेजिनिंग इंटरनेशनलाइजेशन. री इमेजिन कैसे करें इंटरनेशनलाइजेशन को, तो इस पे मुझे एक वाकया याद आता है जो आइंस्टाइन के साथ हुआ 1905 में, कि आइंस्टाइन ने 1905 में जब अपने बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर करने को दिया, तो उनका टीचिंग असिस्टेंट दौड़ के आया कि सर ये पेपर तो आपने पिछले साल भी इन्हीं बच्चों को दिया था, सेम बच्चों को सेम पेपर आप अगले साल भी कैसे दे रहे हैं. तो आइंस्टाइन मुस्कुराए और उन्होंने बोला पेपर सेम है पर आंसर्स डिफरेंट है. आंसर्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि 1904 और 5 के बीच में आइंस्टाइन ने 4 पेपर पब्लिश किए थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, एनर्जी और मास का रिलेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ब्राउनियन मोशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जिससे पूरा का पूरा फिजिक्स का पैराडाइम बदल गया था और आंसर्स पूरे के पूरे बदल गए थे, जबकि क्वेश्चन सेम थे. तो सिमिलरली सेम इतिहास इंडिया में दोहराया जा रहा है. क्वेश्चन सेम है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा, कैसे बच्चों को असेस करेंगे, पर आंसर सबके बदल गए आफ्टर जो ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सारे आंसर्स को बदल दिया है. इसी तरह कोविड ने भी सारे आंसर्स को बदल दिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू इंटरनेशनलाइजेशन. सिमिलरली एनईपी ने इंटरनेशनलाइजेशन के भी सारे आंसर्स ही बदल दिए हैं, क्योंकि इतने सालों से जो इंतजार किया जा रहा था कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, वो सब के सब अब पॉलिसी में एक रियलिटी बनने जा रहे हैं. ये था कि हमारे विश्वविद्यालय बाहर जाके अपने कैंपसेस बनाएंगे, वो रियलिटी बनने जा रहा है. जॉइंट डिग्रीज, ड्यूअल डिग्रीज, ट्विनिंग प्रोग्राम्स, जिसके लिए बहुत दिनों से डिमांड थी कि हाँ जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स करने चाहिए, क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहिए, सबका सब रियलिटी बनना जा रहा है. तो इसी तरह जिस तरह से आइंस्टाइन में 1904 से 1905 में इतिहास बदला, ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 से 2021 में पूरा इतिहास बदल दिया है. तो अब हमें सारे के सारे आंसर्स फिर से लिखने पड़ेंगे, और AIU इस पे खुद से बहुत सारा काम कर रहा है कि कैसे इस बदलते हुए इतिहास को पूरा करना है विश्वविद्यालयों के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, वाइस चांसलर्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा. ये कॉन्फ्रेंस हमारे इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में है, तो इंटरनेशनलाइजेशन की बात करूंगी क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा सा बोलूंगी कि इंटरनेशनलाइजेशन की जरूरत तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ जरूरी है, क्योंकि कैंपस में डाइवर्सिटी आती है, हमारे को एक लर्निंग स्पेस मिलता है जहाँ पे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, अलग अलग देशों से उनका कल्चर, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका करिकुलम, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से सीख सकते हैं. इसलिए इंटरनेशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पर इंटरनेशनलाइजेशन के बहुत सारे कंपोनेंट है. करिकुलम को इंटरनेशनलाइज करो, आप विदेशी स्टूडेंट्स को अपने यहाँ लाओ, विदेशी टीचर्स को भी अपने यहाँ लाओ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करो, बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेशनलाइजेशन के. पर अभी भी भारत में इंटरनेशनलाइजेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है. मुझे याद पड़ता है जब मैं पहले UGC में थी, बहुत पहले, तो हमने एक सर्कुलर निकाला था कि हर एक प्रोग्राम में 15% सुपरन्यूमरी सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होंगी. तो अगर वो 15% सुपरन्यूमरी सीट्स भरी गई होती तो आज हमारे देश में 3.5 करोड़ बच्चों का 15% आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना होंगे, जबकि हमारे देश में बच्चे सिर्फ 46,000 है, विदेशी बच्चे जो हमारे देश में पढ़ रहे हैं. तो इसलिए इंटरनेशनलाइजेशन पे कहीं ना कहीं पे हम लैग कर रहे हैं और उस पर हमें काम करने की जरूरत है. और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत हेल्प करती हैं कि कैसे हम इंटरनेशनलाइजेशन के एजेंडा को ले जाएं. गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हैं, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है, और जो अभी बता रही थी कि पॉलिसी में बहुत सारा इस पर फोकस है. इसी तरह
AIU ने भी 2-3 काम किए हैं, जैसे कि एक म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा इशू होता था कि बाहर से अगर हमारा कोई बच्चा, इंडिया से कोई बच्चा बाहर जाता है और पढ़ के वापस आता है और भारत में आगे नौकरी करना चाहता है या आगे से PhD करना चाहता है, तो उसको इक्विवेलेंस ऑफ डिग्रीज में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि डिग्रीज की जो ड्यूरेशन फर्क थी हमारे देश में और दूसरे देशों में। तो हमने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके ये किया है कि हम साल नहीं देखेंगे, क्रेडिट देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया क्रेडिट्स की तरफ बढ़ रही है, तो हम भी क्रेडिट्स देखेंगे, ना कि साल की कितने साल की डिग्री है। इसी तरह एक कोलैबोरेशन पोर्टल AIU में बनाने जा रहे हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी किस एरिया में सबसे अच्छी है। तो अगर बाहर के विदेशी विश्वविद्यालयों को ये पता चलेगा कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी किस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी है, तो उनको कोलैबोरेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी तो उनको ओवरऑल रेटिंग मिलती है, NAAC की रेटिंग मिलती है, NIRF रैंकिंग मिलती है, वर्ल्ड रैंकिंग मिलती है, पर सब्जेक्ट वाइज उनको नहीं पता चलता है। तो उसके लिए हम AIU कोलैबोरेशन पोर्टल बना रहे हैं। और जैसे डॉक्टर विद्या ने बताया, एक हम इंडियन नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल हायर एजुकेटर्स बना रहे हैं। उसका मूल जो सोच वो इसके पीछे ये है कि इंडिया में 1000 विश्वविद्यालय है, उसमें से मुश्किल से 10, 15, 20 विश्वविद्यालय ऐसे जो इंटरनेशनलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पर बाकी में से बहुत सारे ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि करें कैसे, किससे कांटेक्ट करें, किस फॉरेन यूनिवर्सिटी के पास जाएं, किस फॉरेन प्रोफेसर को अपने यहाँ बुलाएं, तो किस तरह से इंटरनेशनलाइजेशन करना है वो नहीं उनको आता। तो हम उनका हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं। एक तरह से एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, रिसोर्स शेयरिंग होगी कि कैसे इंटरनेशनलाइजेशन करना है, यूनिवर्सिटीज को बताया जाए कि उसमें उनको क्या क्या इन्वेस्ट करना है, किसको अप्रोच करना है, किस तरह के प्रोग्राम्स में इंटरनेशनलाइजेशन जाना है, किस तरह से टीचर्स को इन्वाइट करना है, किस तरह से स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है। तो ये नेटवर्क उसमें बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। परंतु जैसा विद्या जी ने कहा कि हमें आशीर्वाद चाहिए माननीय मंत्री जी का। अगर माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद होगा तो ये जो नेटवर्क है जो पहली बार भारत में बन रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। और इसके सहारे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी इन्वाइट करेंगे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हर यूनिवर्सिटी में उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। Thank you, Dr. Mittal. What a wonderful analogy. I am now going to make a request to the next 3 distinguished speakers. We're very aware of the Honorable Minister's very, very busy schedule, and therefore I'm going to request if you can keep your speeches to 3 or 4 minutes. Our first distinguished speaker this evening is Dr. Anil Kumar Nasa. He's the Member Secretary of the National Board of Accreditation. Dr. Nasa. कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं अपने साथी स्पीकर्स जो हैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी, जिन्होंने अभी इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं और उनको स्वागत करता हूं। और डॉक्टर प्रोफेसर रेमन टोरेंट जी, जो ओब्रियल ग्लोबल स्पेन के प्रेसिडेंट हैं, तथा नीना आर्नोल्ड जी, जो लीड एजुकेशनल स्पेशलिस्ट साउथ एशिया ग्लोबल लीड फॉर टर्शियरी एजुकेशन वर्ल्ड बैंक के हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ अपना वक्तव्य रखने का हमें मौका दिया। और मैं सबसे पहले सिम्बोसिस इंटरनेशनल और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कोरोना के इस वक्त में ये इस टॉपिक को चुना है। और मैं डॉक्टर प्रोफेसर मजूमदार जी, डॉक्टर रजनी गुप्ता जी तथा डॉक्टर विद्या जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, और जिन्होंने इस मौके पे ऐसा एक टॉपिक चुना है जिसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है आज के समय में। और मुझे मौका दिया इस सेमिनार में बोलने का। माननीय मंत्री जी, कल हम लोग इसी प्री सेमिनार में थे जहां पर THE, QS और हमारे रैंकिंग के एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। हमने काफ़ी कुछ इसके ऊपर चर्चा की है, जिसकी टिप्पणियां खास कर वो इसके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगी। मैं सर इस मौके पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं, जो हमें पता है पूरे विश्व में इसका मार हमारी कोरोना झेल रहा है। एक समय ऐसा आया था जब हमें लगा था भारत में कि अब कोरोना चला गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोबारा से इसने अपने सर उठाया है और बहुत सारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमें इसलिए दोबारा सोचने की ज़रूरत है और इसके ऊपर भी हमने बल दिया कल के सेमिनार में। लेकिन इसके कुछ हमें फ़ायदे भी मिले हैं, जिससे हमने ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन, जो हमारा ये टॉपिक है आजकल का, ब्लेंडेड एजुकेशन एज ए कैटलिस्ट, इसकी तरफ हमारे को दिया है। एक्सेलरेशन हुआ है यूज़ ऑफ adoption of digital technologies to deliver education. कोविड ने हमें सिखाया है adoption of digital technology, use of learning management systems,
और नई अपॉर्चुनिटी दी है जहां कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग which is going to take a new form in the coming era, and this pandemic situation has induced people to learn and use digital technology and resulted in increasing the digital literacy. तो इसके माध्यम से हमारी डिजिटल लिटरेसी को भी एक बढ़ावा मिला है। और इस समय जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ओडीएल मोड में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ओडीएल मोड जो है वो ये एनकरेज करता है सेल्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज to learn from diverse resources and customized learning as per their needs. और माननीय मंत्री जी जैसा आप जानते हैं कि हमारा एक स्वयं पोर्टल है भारतीय सरकार का जो AICTE कंट्रोल करता है, जो एक नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें 1900 कोर्सेज हैं जो स्कूल और हायर एजुकेशन के अंदर हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के भी हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जिसमें इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लॉ और मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। इसका यूनिक फीचर है कि इट इज इंटीग्रेटेड विद द कन्वेंशनल एजुकेशन, जहां पर क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी है। अभी AICTE ने 20% स्वयं कोर्सेज को अपने क्रेडिट ट्रांसफर में अलाउ किया है, और अभी रिसेंटली UGC ने भी 40% तक का इसकी अनुमति अभी प्रदान की है। ये ब्लेंडेड एजुकेशन का सिस्टम आजकल है, लेकिन हमें इसमें इंटरैक्टिव लर्निंग को ज्यादा बढ़ावा देना होगा। सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन में रहेगा तो हम रॉट लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। इंटरैक्टिव लर्निंग होगा तो उसमें स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बहुत फायदा होगा। एक दूसरे से मिलकर जब वार्तालाप करके जो सीखा जा सकता है वो एक 1-to-1 वे कम्युनिकेशन से नहीं सीखा जा सकता। तो इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें हमारे को जो सीखने का मौका, बच्चों को जो सीखने का मौका मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी पे भी हमें ध्यान देना होगा, और क्वालिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल उस पर भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम एक ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़े जा रहे हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए हमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी और क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ऊपर हमें पूरी तरह से ध्यान देना होगा। हमें एक तरह से एक शांत नहीं बैठना, लेकिन इसकी और हमें अग्रसर होना है। और इसके साथ ही साथ हमें क्वालिटी ऑफ असेसमेंट के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। अगर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर रोज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट एक अच्छा मेथड है जिसमें असेसमेंट टीचर देता है, वो अगले दिन वो उसके ऊपर डिस्कस करता है या उनको इवैल्यूएट करता है। इसके साथ ही साथ हमारे को ये जो कोरोना से और इंटरनेशनलाइजेशन से इस मौके में जो मौका मिला है वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च का और कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग का। इसमें हमें एक मौका मिला है कि जो देश और विदेश दोनों में अध्यापक एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव टीचिंग कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं। उससे हमारे देश में रिसर्च का एक स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, और अभी मौका भी और भी मिला है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी उनके जो स्पीकर्स हैं, जो उनके शिक्षक हैं, उनको भी हमारे सीखने का मौका मिला है। तो मेरा मानना ये है मंत्री जी की, अगर माननीय मंत्री जी कि हमें ब्लेंडेड एजुकेशन की, और जैसा इन्होंने टॉपिक में चुना ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूं कि एक ब्लेंडेड एजुकेशन जहां कोलैबोरेटिव लर्निंग हो और कोलैबोरेटिव असेसमेंट हो और इंटरैक्टिव लर्निंग हो, उसको अगर बढ़ावा मिलेगा तो डेफिनेटली हमारा एक उद्देश्य पूरा होगा। और माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी मैंने कहा कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा, हम एक देश को एक बहुत बड़ा एक तोहफा भी दिया है, एक हमारे को अग्रसर विदेशों में या संसार में आगे बढ़ने का मौका मिला है, उसमें एक बहुत अच्छा काम किया है। और हमें नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल भी एक उसमें फॉर्मेट एक ग्रिड के रूप में एक नई संस्था का निर्माण करने के लिए भी आपने उसमें अनुमति दी है, जहां पर हम लोगों को ऑनलाइन एक्रेडिटेशन और ब्लेंडेड एक्रेडिटेशन के बारे में भी सोचना होगा। और जैसा कि नई शिक्षा नीति में एक बेसिक कंसेप्ट दिया है वो है ऑटोनॉमी का और ग्रेडेड ऑटोनॉमी का, विच इज लिंक टू द एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग ऑल्सो। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो हमें आगे आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स हमको सामने में मिलेंगे। अब ये वक्त बहुत कम है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हमें ब्लेंडेड एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ावा देना है नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जिसकी सराहना देश और विदेश दोनों में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, Dr. Nasa. I'd now like to invite Nina Arnold. She's the lead education specialist, South Asia, global lead for tertiary education, World Bank.
Thank you. Honorable Mr. Minister, honorable institutional leader and leaders and esteemed colleagues. Following in the footsteps of Dr. Yeravtekar and Dr. Mittal, I'm delighted to welcome you to this conference on reimagining internationalization on behalf of the World Bank. It's an honor for us to collaborate with Symbiosis, ARU and Obreal on this important event and to listen to you, Honorable Mr. Minister. Actually, the conference couldn't be timelier. The COVID-19 pandemic has forced us to reimagine many things. It has caused us collectively much pain, but it has also forced us to come out of our comfort zone and think creatively together about the future of tertiary education. Internationalization in tertiary education has, of course, many facets. It connects institutions, academics, and students. It helps us to learn from other systems and approaches, and thereby increases the quality of provision, for example, also through internationalization at home. For many countries and institutions, it's also an important income source. Before the pandemic, digitalization and blended learning on one hand and internationalization on the other have been largely discussed as two different aspects of tertiary education. However, this type of thinking belongs to the past. As we discuss in an upcoming World Bank position paper on tertiary education, digitalization is no longer the future for tertiary education. It is the present. No system can afford to ignore or diminish its commitment to effective technology. However, we need to make sure that technology is put to work to increase access, to increase equity, to increase quality, and also to expand and enhance internationalization. The World Bank has started a new analytical and advisory program in India, which looks into digitalization, internationalization, equity and employability, sector steering, and academic careers in the context of the national education policy and in the global context. This work will inform future World Bank operations in support of the NEP. However, we also have engaged in a strong exchange with our partners, including Symbiosis and ARU, to develop a joint understanding of the challenges the sector faces and potential solutions. We are thus grateful to Symbiosis and ARU for selecting the topic of internationalization and blended learning for this conference and look forward to the outcomes of this exchange. I'm wishing all of us excellent discussions and a productive event. Thank you very much. Thank you, Nina. I'm now happy to invite Professor Ramon Torrent Macau, the President of Obreal Global Spain. Professor Ramon. Respected Honorable Minister, distinguished Secretary General of the Association of Indian Universities, dear authorities of Symbiosis International University, esteemed colleagues from India and from all over the world. I am the only speaker from the EU in this inaugural conference. Nina Arnhold is certainly German, but now wears the hat of the World Bank and works in Asia. So I'm the only one speaking from the European Union. Therefore, my welcoming words to this conference must be modest and grateful and full of hope. Modest and grateful because I fully share the dictum of lemma of Symbiosis, Vasudhaiva Kutumbakam. That is to say, the world is one family, or as I would put it, we are all citizens of the world. So, can you imagine myself coming from a small country, Spain, with only 45 million people, a country that is a member of the European Union, an integration process embracing
450 million people talking to a conference that brings together the higher education system of a country like India with 1,400 million people, 3 times more than all the citizens of the European Union together. Can you imagine the honor that this is for me to address such a country and the university system of this country? So, gratefulness, enormous gratefulness from Obreal Global. But also, and probably this is more important, my words must be words of hope. Hope because we are witnessing that India is becoming one of the centers of higher education in the world and has launched a new national policy centered on internationalization. This must be good for India and for the world. I'm convinced that an approach on internationalization of higher education produced in India and projected from India to the world must be much more effective, much more inclusive, much more equitable, much more peaceful than other approaches launched from other countries in the world that cannot and at least should not forget that at some point they were colonial powers. So for Obreal Global as an association, we are honored by accompanying Symbiosis, by accompanying our Obreal Global Indian chapter and being able to collaborate with them in making a real higher education for the world that is only one family, Vasudhaiva Kutumbakam. Thanks to all of you for allowing me to pronounce these words. Thank you, Professor Ramon. More than 50 years ago, Chancellor Professor Dr. S.P. Muzumdar, who lived in Pune and taught in Pune, felt the pain and the agony of international students, and that led to the setting up of Symbiosis. Over the years, he has remained constant to his vision and his passion. And we are happy that over these years, we've also been able to contribute to internationalization at the national level. Dr. Vidya Yerodikar, through her own personal interest in this area as an academic discipline, is committed to it through her own research and scholarly efforts. She also, through many positions that she holds, including FICCI, has been able to contribute to the drafting of chapters and policies on internationalization in government policies and even in the NEP. So with that sense of confidence that we are carrying forward the Chancellor's vision, I am now happy to invite Chancellor, Professor Dr. S.P. Muzumdar, to address the audience. Firstly, to all of you, the chief guest for this function, our beloved Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyalji Nishank. Sir, whenever you come to Symbiosis, you bring with you energy, enthusiasm, hope, and optimism. And therefore, whenever you are in Symbiosis, we feel so happy, so energized, and I'm sure your presence today will go a long way in inspiring us to do something more in the field of higher education. We have Dr. Vidya with us, Rajni Gupte, our Vice Chancellor, Dr. Anil Kumar Nasa is also with us. But I'm surprised that Nina Arnold of World Bank is also with us. And
I was really pleasantly surprised when Professor Raman of Gabriel Global mentioned about Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. So welcome to all of you to Symbiosis International University. Sir, as you know, Symbiosis is a very unique university. Symbiosis is an idea. There are more than 900 universities in our country. But Symbiosis was not started as a university, sir. When I was in professor in Ferguson College, I realized the problems of international students in Pune. And to help them, we started Symbiosis to solve their problems of admission, accommodation, homesickness, food habits. And that is how we started International Cultural Center. So international culturalization was the beginning of Symbiosis. And then we realized that so many foreign students are there in Pune. Why not start? Why not bring foreign and Indian students together by starting educational institution? And that is how we started various institutions of higher education in Pune. And believe me, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, with which the Symbiosis was born, started flowering. Today we have got students from 85 different countries, 3,000 students from Africa, Asia, Europe, and so many countries. Not only that, but today we also have students from almost all states of our country. So, Vasudhaiva Kutumbakam is now in action in Symbiosis International University. And today, Pukriyaji, I am a member of Rabindranath Tagore's concept of Vishwabharati and Sania Guruji's concept of Antarbharati. So in Symbiosis, to these two important concepts of Vishwabharati and Antarbharati are so amalgamated that we are now a global university. Be that as it may, suffice it but for say that internationalization has been the DNA of Symbiosis. And therefore, internationalization is not new to us. We have been born with the concept of internationalization. Our university promotes internationalization. And whenever Vidya organizes any conference, she always thinks of internationalization, and internationalization. And it is very correct in tune with Symbiosis in terms of Vasudhaiva Kutumbakam. But sir, you will agree with me that nowadays, whenever you must be attending meetings or conferences, you must be hearing about COVID-19. We are almost obsessed with COVID. So much so that just as there is internationalization, there is globalization. I am afraid now there is going to be a COVIDization. Because COVIDization has entered into our minds. COVIDization has become our psyche. And therefore, I want to say very politely, but very boldly to all participants that we need not be afraid of COVIDization. COVID pandemics have come in the past. Pandemic is here now. Pandemic will be there in future. But we should not be afraid of pandemic. We should not be afraid that inconspicuous, submicroscopic virus called COVID-19. COVID-19 will go definitely. But our mission must be very strong. Our mission too must continue. And therefore I am glad that education is all over the world have become optimistic. They are finding solutions. But to me, internationalization of higher education is good. But the blended learning, whether blended learning can be a catalyst. And when a common man hears about blended education, he means that classroom education and online education, these are the two important components when we say blended education. But sir, you will agree with me that blended online education cannot be
a permanent mode of education. It is an emergency solution. But online education cannot substitute. The online education cannot substitute. It cannot become a very important component of campus education, because campus education has been there for centuries. Our Nalanda University, our Takshashila University, they were all campus universities. Oxford University, Cambridge University, all these universities. Now it is because of temporary phase of Covidization, because we are afraid of COVID-19, that we are thinking of online education as a complementary or alternative or sometimes blended education. Yes, my point is, one or the other day, we have to be on campus. Our students have to be on campus. Our teachers have to be campus. Because, sir, you will agree with me that it is campus education which have produced leaders like you. It is campus education which have produced so many leaders in different countries. So, the campus education, classrooms, not only, and you will agree with me that it was Kothari who first suggested that countries are shaped in the classrooms of schools. So classroom education has its own importance, campus education has its own importance, and I do feel that outside the classroom, there are going to be many activities, social get-togethers, canteen, mess, hostel rooms shared by so many students from different countries, so many students from different states. The activities which go on outside the classroom really shape the personality of the student. And therefore, all of us must remember that online education is an emergency solution, and therefore, campus education has to be thought of very seriously. Yes, once students are there on the campus, once students are there in the classroom, you can introduce various technological tools to make classroom education more effective, purposeful, which students can easily understand. But I must say that we should not think that blended education is a catalyst. Personally, I feel that online education can never substitute any form of education. With these things, I do feel that our national education policy, and sir, you are really lucky education minister, because if somebody wants to write a history of education of India, you will be known as the minister during whose tenure National Education Policy 2020 was framed. Not only framed, but under your leadership, it was implemented. And I am glad that Dr. Kasturirangan has given a separate chapter on internationalization of higher education in India. And do you know what he said? He said that internationalization of education doesn't mean exchange of students. Yes, number of students is important, but that is not only internationalization of education. Foreign faculty exchange programs, collaboration, interaction, writing papers, dual degrees, in different types of innovation, that really constitute internationalization of higher education. And sir, I am really happy that when NEP talks about national internationalization of higher education, this chapter has given many strengths of India. And what are those strengths? Those strengths are, we are very fortunate to have excellent subjects like Indology, Indian languages, Ayush system of medicine, yoga, art, music, history, culture, and modern India. These are our strengths. And therefore, we must promote these aspects mentioned in the National Education Policy so that foreign students will not be attracted to India only to undergo undergraduate courses or postgraduate courses. Yes, they are important. But if you study what are the strengths of our country, you will find that we have many strengths. We must promote these subjects so that students, scholars, researchers
will from developed countries will come. In Nalanda, you will find, and you will agree with me, and you know it better than anybody else, that students were coming for higher education to learn Buddhism, to learn great concepts of Indian culture, Indian history. So I will suggest to all the scholars and researchers, don't talk too much about Covidization. Don't be afraid of COVID-19. Let us be optimistic. Let us try to defeat COVID-19 by mask, hand washing, and all that. But we must share away the fear of COVID. And only then we will discuss these things in greater details with open mind. And I'm sure, sir, when you are present here, you will bless this activity. The Symbiosis is doing extremely good job. And Vidya has organized 4 days. We have devoted 4 days for this internationalization conference. And we are thinking whether blended education is a catalyst. Yes, we should think about that. But I am again and again repeat that let us not make too much fuss about COVID-19. Let us not make fuss about Covidization. And we must remember that online education is an emergency measure. By all means, blended education means bringing technology in the classroom, fine. But let us not expect too much from online education. Sir, I know unless we don't have 100%, there is considerable digital divide in our country. If you go to our villages, if you go to our rural areas, even students don't have enough prevalence, students don't have bandwidth. And therefore, unless there is digital literacy, yes, we are just started digital literacy. But in digital divide, when there is no adequate digital literacy in our country, there is no point in harping online education. I may sound old man, yes, having old views, but as far as education is concerned, I do feel that campus education has no substitute, and therefore we must undertake internationalization of higher education on the campus education, and we must promote our Indian strengths, which I have just now mentioned. Sir, once again, I thank you so much for sparing your time. We need blessings from you. Symbiosis needs support from you, and God bless you. Thank you all the participants for participating in this conference. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Never old, always wise, inspiring, optimistic for us. All the participants and the organizers who are attending IHE 2021, we are honored to have the Honorable Minister of Education with us as the chief guest. May I now request Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Honorable Minister of Education, Government of India, to address the attendees. Sir. प्रोफेसर एस.बी. मजूमदार, कुलाधिपति सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मुझे लगता है कि जिनका इस उम्र में भी बहुत हमको प्रेरणादायी अभी मार्गदर्शन भी मिलता है और जिन्होंने अपने बहुत अथक प्रयास से आज इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला करके खड़ा किया है। हमारे साथ उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जो आयोजित SIU और AIU का जो वार्षिक ये आपका सम्मेलन हो रहा है और उसमें भी उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ज़्यादा अपनी चिंता व्यक्त की है और ऐसे वक्त पर जब कोविड का समय है और तमाम चुनौतियों से हम सब लोग जूझ रहे हैं, ऐसे समय में इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन निश्चित ही रूप में प्रशंसा के योग्य है। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार नासा जो सदस्य सचिव हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के और डॉक्टर पंकज मित्तल महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ, हमारे साथ विदेश से जो तमाम देशों से अतिथि जुड़े हैं,
लेकिन विशेष करके सुश्री नीना अनरोल्ड जी जो प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ हैं विश्व बैंक की, और श्री रेमन मकाऊ जो अध्यक्ष हैं ओब्रिल ग्लोबल के, इनके सहित सभी जो विदेशों से 30 देशों से जुड़े अतिथि हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर उनका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी इस विश्वविद्यालय सिम्बायोसिस की कुलपति डॉक्टर रजनी गुप्ते जी और प्रो चांसलर डॉक्टर विद्या जी, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, निदेशक, संकाय और सभी शोध छात्र और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी शिक्षाविद भाई और बहनों, मैं इस अवसर पर आप सब का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। और शिक्षा का हमेशा कहा है सा विद्या या विमुक्ति, शिक्षा वही है जो आपको समर्थ करती है और विषम परिस्थितियों में आपको मार्ग निकालती है, आगे बढ़ाती है और मुक्त भाव को पैदा करके उस शिखर तक आपको लेकर के जाती है, वही शिक्षा है। और उसी शिक्षा ने आज इस भरे संकट में, जबकि पूरी दुनिया कोविड की महामारी के संकट से गुजर रही है, ऐसे वक्त पर मैं समझता हूं कि शिक्षा से जुड़े लोगों का और शिक्षाविदों का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जब वो लीडरशिप स्वतःस्फूर्त अपने हाथ पे लेते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जब पूरी दुनिया में ये कोविड की महामारी आई और बहुत सारे विकसित देशों ने अपने को एक एक वर्ष पीछे कर दिया था, ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में हमने इस भरी चुनौती का बखूबी तरीके से मुकाबला किया है और इस चुनौती को हमने अवसरों में तब्दील किया है। आपने देखा होगा कि ऐसा देश जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, जिसकी आबादी 130 करोड़ से अधिक हो और जिसका वैभव शिक्षा का जहां 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हों और 45,000 50,000 डिग्री कॉलेज हों, जहां 15-16 लाख स्कूल हों और जहां कई देशों की तो जितनी आबादी नहीं है उतनी अकेले 1 करोड़ 10 लाख से अधिक हमारे पास अध्यापक हों और छात्रों की संख्या देखें तो 33 करोड़ की दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिनकी तो 33 करोड़ कुल आबादी नहीं है। तो 33 करोड़ छात्र छात्राओं के इस व्यापक इस स्वरूप को एक साथ साधना और इस संकट के समय में रास्ता निकालना कोई सहज बात नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से वर्तमान में कोविड काल में और भारत की शिक्षा और शिक्षा नीति जो वर्तमान में आई है, तीनों पर काफी ध्यान केंद्रित किया। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने इस जो संकट का समय था उसका मुकाबला किया और कोई सोच भी नहीं सकता कि 25 करोड़ छात्र छात्राओं को हम एक साथ ऑनलाइन पर लाए हों। अभी हमारे वक्ताओं ने कहा है कि अब भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान है, डिजिटली युग और तकनीकी की बात तो सही है, हम सोच भी नहीं सकते जो काम इस समय हमने किया है हम शायद 25 साल बाद जाकर के उस काम को करते और लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या हम स्कूलों जो घर हैं, घर को ही स्कूलों में हम तब्दील कर दें और अध्यापक और अभिभावक का बेहतर समन्वय करके उस बच्चे की हम सुरक्षा करें। कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने समय पर परीक्षा करवाई, हमने समय पर रिजल्ट घोषित किया, हमने एक वर्ष बर्बाद नहीं जाने दिया और इसलिए पीछे के दिनों में पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा रही है कि हिंदुस्तान ने इस विषम परिस्थिति में अपने को खड़ा रखा है और मुझे इस बात की खुशी है कि यही वो काल 2020 का यदि पूरी दुनिया में कोरोना के नाम से जाना जाएगा तो ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में आई नई शिक्षा नीति NEP 2020 के लिए भी जाना जाएगा, जब इसी कोरोना काल में हम ऐसी शिक्षा नीति को लेकर के आई हैं, जब क्योंकि ये शिक्षा पर चर्चा है, उच्च शिक्षा के उन्नयन पर चर्चा है और मैंने कहा कि शिक्षा माने क्या,
शिक्षा कोई अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान केवल शिक्षा नहीं हो सकता है, ये मनुष्य का सर्वांगीण विकास शिक्षा है। उसमें जो उसके अंदर समाहित है क्षमताएं, वो ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, नवाचार है, संस्कार है, आचार है, व्यवहार है, उसके जीवन मूल्य हैं, ये कोई एक भी यदि चीज उससे अछूती रहती है तो मनुष्य को हम सर्वांगीण शिक्षा का केंद्र नहीं बोल सकते हैं। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है इन विषम परिस्थितियों में हम लाए हैं, लेकिन भारत केंद्रित हमने इस शिक्षा नीति को कहा है। और जहां हमने ये कहा कि जो नई शिक्षा नीति है, जब अभी मजूमदार जी कह रहे थे विश्व बंधुत्व की बात कर रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे थे, वसुधैव कुटुम्बकम की बात कर रहे थे, और तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की बात कर रहे थे, तो मैं कह सकता हूं बहुत बड़े गर्व के साथ कि हाँ, ये जो शिक्षा थी भारत की, वो सारे भारत की शिक्षा पूरे विश्व के लिए थी। आज उसको अंतरराष्ट्रीयकरण करने की जो बात हम कर रहे हैं, पहले से ही भारत की शिक्षा जो ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, जीवन दर्शन में, जो आचार में, व्यवहार में, वो सभी प्रकार की शिक्षा वो पूरे विश्व के लिए, मानव के लिए थी। क्योंकि हमारा जो केंद्र वो मनुष्य था, व्यक्ति, क्योंकि हमने पूरी धरती को अपना परिवार माना है। हमने वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचित्तसाम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यदि वसुधा को, पूरे संसार को हम अपना कुटुंब मानते हैं और उसके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस परिवार की सुख, समृद्धि और प्रगति की कामना करते हैं, तो जब परिवार एक होता है तो उसकी प्रगति के लिए पूरे लोग खपते हैं, जुटते हैं। वह हमारे देश का ये भाव रहा है। और इसीलिए तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ये पूरी दुनिया का केंद्र रहा है। और यदि आप ज्ञान विज्ञान अनुसंधान में कहेंगे, पीछे के समय में कैम्ब्रिज ने एक अच्छा मेल भेज करके मुझे उनके शिक्षा के जो पब्लिकेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया भारत की आभारी है जिन्होंने अंकगणित और बीजगणित को दिया है पूरी दुनिया को। तो मैं ये समझता हूँ, न केवल भारत ने अंकगणित को दिया है, न केवल शून्य को दिया है, बल्कि यदि भास्कराचार्य का देखेंगे उस समय का वैभव, तो विज्ञान के शिखरता देखेंगे। यदि बौधायन को देखेंगे, सुश्रुत को देखेंगे, नागार्जुन को देखेंगे, यदि उस समय के वैज्ञानिकों को देखेंगे, तो जिस तरीके से उन्होंने समाज की संरचना की, ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, नवाचार में जो शिखरता को चुमा था, वो रास्ता था। अब उस रास्ते को ताकत के साथ खड़े करने का काम ये जो NEPI है, ये NEPI, इसकी खूबसूरती ये है कि ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है, ये इंटरैक्टिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है, ये इनोवेटिव भी है। और यदि देखेंगे तो इसकी जो आधारशिला है वो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की खूबसूरत आधारशिला पर खड़ी है। ये सामान्य नहीं है। इस बात की चिंता करने की इस नई शिक्षा नीति ने बखूबी प्रयास किया है कि हम केवल टैलेंट को ढूंढेंगे नहीं। एक आदमी बहुत प्रखर है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसको लाइन नहीं मिल रही है, तो उसकी प्रखरता वहीं रह जाएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा हम टैलेंट को ढूंढेंगे भी, टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट भी देंगे। अभी शिक्षा की जो स्तर की हम चर्चा कर रहे हैं, हमने कब चाहा कि वो इस उत्कृष्टता के, हमने वो कंटेंट कहाँ दिया अपने छात्र को? जब दिया है तो उसकी उत्कृष्टता बढ़ी है। हमने वो चीज ला करके, शोध करके उसको दिया है। जो भी दिया है उसको लेकर के तो आगे बढ़ेगा। वो एक क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में होड़ लगी तो उसी क्षेत्र में बढ़ रहा है। यदि कभी थोड़ा सा एक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, तो उसी में होड़ लग रही है। और इसलिए सर्वांगीण तरीके से ज्ञान में भी हो, विज्ञान में भी हो, तकनीकी में भी हो, वो विभिन्न क्षेत्रों में, वो सभी क्षेत्रों में वो बढ़े, इसकी चिंता ये करती है। इसलिए हम टैलेंट को ढूंढेंगे भी, उसका विकास भी करेंगे, उस टैलेंट को विस्तार भी देंगे और उस टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट देंगे, जोड़ेंगे, और उन दोनों के समन्वय से हम पेटेंट निकालेंगे। असली चीज वो है
क्या चीज नई निकाल रहे हैं हम लोग, उस शोध और अनुसंधान के आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए अभी मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े विमर्श के बाद आई। तमाम लोगों ने इस बात को कहा है, दुनिया के तमाम लोगों ने कहा है, शिक्षाविदों ने कहा है, और उत्कृष्ट कोटि के जितने भी हमारे विश्वविद्यालय, उन्होंने भी, काफी विश्वविद्यालयों ने इस बात को कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़े रिफॉर्म के साथ आई है। और निश्चित रूप में ये जो उत्कृष्ट कोटि के कंटेंट के साथ हम लोग को पेटेंट को निकालने की बात कर रहे हैं, शोध और अनुसंधान की बात कर रहे हैं, इसीलिए शोध और अनुसंधान की दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया है। 50,000 करोड़ 5 वर्ष में केवल शोध और अनुसंधान पर हम लोग लगाएंगे। और जहां इधर शोध और अनुसंधान में करेंगे, ऐसा नहीं कि आज हम शोध और अनुसंधान की दिशा में हिंदुस्तान पीछे है, हम दुनिया के शीर्ष 129 विश्वविद्यालयों के साथ हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड के तहत पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं, हम इम्प्रिंट के तहत कर रहे हैं, हम इम्प्रेस के तहत कर रहे हैं, हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि जहां हमने स्टडी इन इंडिया पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने के लिए आह्वान किया है, और बहुत तेजी से पूरी दुनिया के लोग हमारे पास, क्योंकि हमारे पास योग है, हमारे पास साहित्य है, संगीत है, कला है, हमारे पास योग, आयुर्वेद है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को देने के लिए हैं। उन तमाम कम से कम 50-100 चीज ऐसी हैं, और जो समाज में बिखरी हुई चीजें हैं उनके समाधान की दिशा में शोध और अनुसंधान करके, उन नवाचार और तकनीकी का उपयोग करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन कर रहे हैं, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी तकनीकी का लाभ मिल सके, और वो तकनीकी दृष्टि से उसको हम इतना समृद्ध कर सकें कि वो लोकल फॉर ग्लोबल तक जा सके, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा सके। और इसलिए इस शिक्षा नीति के तहत हम विश्व की शीर्षतम 100 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चुने हुए विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान की धरती पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमने यहाँ से भी हमारे शीर्ष संस्थान पूरी दुनिया में जाएंगे, तो जहाँ हम पारस्परिक, जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है, नासा जी ने कुछ बिंदुओं को कहा, पंकज ने काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो अब वो नहीं होगा। हमने स्टे इन इंडिया किया इस समय, क्योंकि हिंदुस्तान से 8 लाख छात्र प्रतिवर्ष लगभग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अभी उनको उत्कृष्ट कोटि का हम यहाँ पर देंगे, उनको वो शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध होगी। और इसीलिए एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हम बना रहे हैं, ताकि कहीं भी पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी उसको निराश होना न पड़े, और जब चाहे बहुविषय की इस नई शिक्षा नीति के अंदर किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को वो ले सकता है, जो उसका मन है, उसके लिए पूरा मैदान खाली है, और वो कुछ भी विषयों को ले सकता है। और यदि वो 1 वर्ष में ही छोड़ने की परिस्थिति उसकी बन रही है, तो उसको निराश हताश होने की जरूरत नहीं। 1 वर्ष में भी उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, 2 वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो उसको 2 वर्ष में डिप्लोमा का सामान मिल रहा है, 3 वर्ष में छोड़ेगा तो उसको डिग्री मिलेगी। लेकिन यदि बीच में ही 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद उसको ये लगता है परिस्थितियां उसके अनुरूप हैं और उसको अपना करियर को, अपने भविष्य को और संवारना है, तो वो जहां से छोड़ करके गया था वहीं से वो उसको आगे बढ़ा सकता है। वो उसके लिए पूरी तरीके से छूट है, उस बैंक की चाबी उसके हाथ में होगी, जहां जब चाहे वो खोलेगा और वहां से चलना शुरू कर देगा। ये इसकी खूबसूरती है। और इसलिए NIRF जो टॉप 100, क्योंकि इस समय जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा चाहे मजबूरी में ही आई, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हमारी मजबूरी बनी और उसी ने आधार बनाया, जो मानसिक दबाव था उसको भी कम नहीं किया, बल्कि नई संभावनाओं को न केवल तलाशा बल्कि उसको लोगों के हाथों में सजोने का काम किया है। और इसलिए हमारे जो NIRF में टॉप 100 हमारे यूनिवर्सिटी हैं, उनको हम ऑनलाइन का दे रहे हैं, ऑनलाइन वो एजुकेशन दे सकते हैं। और जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो इधर आए, यहाँ के विश्वविद्यालय उधर जाएं। हमने ज्ञान और ज्ञान प्लस में
ज्ञान में बाहर की फैकल्टी को हम इधर ला रहे हैं, जबकि ज्ञान प्लस में अब हमारी फैकल्टी भी दुनिया में जाएगी। अध्यापक शिक्षण, क्योंकि अध्यापक यदि समर्थ है तो उस छात्र को समर्थ करेगा ही करेगा, और इसलिए ये पहली जरूरत है कि हमारा जो शिक्षक समर्थ हो, और इसलिए जो शिक्षक प्रशिक्षण पर हमने इस एनईपी में विशेष करके ध्यान दिया है। और इसलिए ये जो रिफॉर्म के साथ आई है, हम निश्चित रूप में शिक्षा नीति के तहत जो अंतरराष्ट्रीय फलक पर शोध, अनुसंधान और नवाचार के रूप में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम इसमें रिफॉर्म भी करेंगे, हम परफॉर्म भी करेंगे और हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत मजबूती के साथ आगे आती है, और इसकी खूबसूरती उसके भारतीय जीवन मूल्य भी हैं। हमारे चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, और चाहे महर्षि अरविंद हों, चाहे विवेकानंद हों, और चाहे गांधी जी हों, आज भी पूरी दुनिया को गांधी जी के सत्य, प्रेम और अहिंसा की जरूरत है। आज देश प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे के समय में जब यूनेस्को की डीजी से मेरी बातचीत हुई थी, तब उन्होंने यही कहा कि ये जो आदमी है, छात्रों में अनुशासनहीनता क्यों आ गई, ये एक दूसरे को सहज तरीके से स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं, बहुत सारी कमियां आई हैं। तो इसलिए क्योंकि हमने उसको मशीन जैसा बना दिया, हमने मानव नहीं बनाया। हमारी पहली जरूरत शर्त है हिंदुस्तान की इस नई शिक्षा नीति की कि नई दुनिया के लोगों में, दुनिया पहला व्यक्ति मानव हो, मनुष्य हो, पहले उसको मनुष्य बनाना है। और इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि इस देश में एक अच्छा नागरिक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वैश्विक नागरिक भी चाहिए, विश्व को लीडरशिप देने वाला चाहिए, जिसमें करुणा हो, जिसमें संवेदना हो, जिसमें दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसमें प्रखरता हो, जिसमें ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो, अनुसंधान भी हो, नवाचार हो, संस्कार हो, आचार हो, व्यवहार हो। ये इस तरीके को व्यक्ति चाहिए हमको दुनिया के लिए। और इसलिए ये हमारी जो शिक्षा नीति है ऐसे समर्थ व्यक्ति को तैयार करती है, और इसीलिए भारत जो है ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने की इसमें क्षमता है। भारत वैसे भी विश्व गुरु रहा है, और भारत ने हर दिशा में लीडरशिप ली है, और मुझे भरोसा है कि ये वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में निश्चित रूप में हम भविष्य में इस नई शिक्षा नीति के रूप में अपने देश को देख सकते हैं। और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति इन दोनों के रूप में स्थापित करना है। और हमारा जो 21वीं सदी का है, 21वीं सदी की जरूरत के अनुसार, चाहे वो समग्रता है, चाहे लचीलापन है, बहुविषयक है, ये छात्रों में अद्वितीय क्षमताओं का विकास कैसे करना है, ये सब उसके अंदर आया हुआ है। ये जो नीति है ये अपग्रेड और अपस्किलिंग की जो हमारी सोच है उसको प्रकट कर रही है। और मुझे लगता है कि यदि आप इसको, आपने खूब अच्छे से देखा है कि इसमें चाहे मातृभाषा के रूप में ले हो, चाहे भाषाओं की विविधता के रूप में उसको स्वीकार करने की बात हो, जिस भी एंगल से आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो शिक्षा नीति है ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। पीछे के समय में जब मेरी अभी कुछ दिन पहले यूनेस्को के महानिदेशक अभी आंड्रे अजोले से मुलाकात हुई थी ऐसे संवाद में, मीटिंग में, तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के लिए न केवल बधाई दी बल्कि इसको विजन डॉक्यूमेंट बताया पूरी दुनिया के लिए और सराहना की इसकी। और उन्होंने ये भी कहा, मुझे खुशी है, उन्होंने कहा कि शिक्षा के पूरे वातावरण को बदलने में बहुत ही सक्षम है। और यूनेस्को की ओर से जहां उन्होंने हमको शुभकामनाएं दी, इस नीति को पूर्ण समर्थन दे करके, और पीछे के दिनों में उन्होंने कहा कि जो भारत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया कोविड काल में, उन्होंने कहा आपके अनुभवों का लाभ हम पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहेंगे। मुझे खुशी है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसे समय में, जबकि कोविड का काल था और हमारे छात्रों ने शोध और अनुसंधान किए, जब देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को ये आह्वान किया कि ऐसे विषम परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ का जो छात्र है
वो आया था जब लोग अपने घरों में रहे होंगे कैद, उस समय वो अपनी प्रयोगशालाओं में रात और दिन खप रहा था। उसने मास्क बनाई, उसने वेंटिलेटर बनाए, उसने टेस्टिंग किट बनाई, उसने ड्रोन बनाए और आज पूरी दुनिया में कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दर्जनों देशों तक इन चीजों को पहुंचाने में पूरी दुनिया की मानवता की मदद की है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सामर्थ्य है हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान कई बार जब चर्चा होती है तो मैं ये समझता हूं कि हमको हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को देखना चाहिए। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। किसी दुनिया के किसी देश में 2-4 विश्वविद्यालय वो 24 घंटे उसी को स्तर को बढ़ाते नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम पूरी 130-135 करोड़ लोगों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जितने मेरे देश से शोधकर्ता निकल रहे हैं, जितने हम प्रतिदिन उच्च शिक्षा में उपाधियों को दे रहे हैं, तमाम कई दर्जनों देशों को सब मिलकर के उच्च शिक्षा को प्रदान नहीं कर रहे हैं। जितने हम पीएचडीज निकाल रहे हैं प्रति वर्ष, उतना तो दर्जनों देशों के लोग अपने पीएचडी नहीं निकालते हैं। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को। मुझे इस बात को भी खुशी है कि आप पीछे के समय में हमारे शैक्षणिक संस्थाओं ने काफी तेजी से अपनी प्रगति की है। जहां हम टाइम्स रैंकिंग में काफी अच्छे आए हैं, हम क्यूएस रैंकिंग में अपना स्थान बनाया और पीछे के समय में तो 40,000 दुनिया के विश्वविद्यालयों में विषय के अंदर 100 के अंदर हमारे 12 संस्थाओं ने अपना स्थान अर्जित किया है। और यदि ये मानकों को, ये जो वैश्विक दृष्टि से जो बाहर के फैकल्टी के मानक को हटा दें, क्योंकि बाहर जो हमारे छात्र हैं वही प्रोफेसर हैं, यदि वो वहां पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, तो फिर यदि वो हिंदुस्तान में आकर के पढ़ा रहे हैं तो वो तो विदेशी फैकल्टी है, उसको आप विदेशी फैकल्टी क्यों नहीं मानते हैं? तो जिस दिन मूल्यांकन की दिशा में ये भी होना शुरू हो गया, उस दिन देखिए कि क्या आमूलचूल परिवर्तन होगा। और क्योंकि ये इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में इस तरीके की चुनौतियों का मुकाबला करके उन चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करने की जो यहाँ पर इस बीच जो हिंदुस्तान ने किया है, दिखाया है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस दिशा में बहुत आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आपकी जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, मजूमदार साहब ने, कि निश्चित रूप में मैंने सिम्बायोसिस को भी देखा है और आपने एक अंतरराष्ट्रीय अपने घर से दूर अपने घर में, अपने ही घर में, अपने घर से दूर अपने ही घर में शिक्षा ग्रहण करने का एक अच्छा सूत्र दिया है। और आपका परिवेश बहुत अच्छा है और हम तो आपसे प्रेरित होते हैं। इस आयु में भी आप शिक्षा के लिए किस सीमा तक आप समर्पित हैं, हमको खुशी होती है। और विद्या तो 24 घंटे आपके सानिध्य में रहती हैं, हमारे कुलपति भी रहते हैं, तो इनको भी आपकी प्रेरणा मिलती होगी। लेकिन जो दुनिया के तमाम देशों के लोग आज हमसे जुड़े हैं, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिल करके, क्योंकि ये शिक्षा न केवल एक देश की शिक्षा है, ये शिक्षा केवल एक क्षेत्र की नहीं है, इसके कोई सीमाएं नहीं है, ये एक मानव बनाने का महान प्रयास है। जब हम अपने पूरी ताकत के साथ अपनी पीढ़ी को मानवता के आधार पर उसको अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और पूरी दुनिया को एक अच्छा परिवार बनाने के लिए, पूरी दुनिया को एक अच्छा सुसंस्कारित पूरी दुनिया बनाने के लिए, एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए, यह हमारी यात्रा है जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार से होकर के गुजरती है, लेकिन जिसकी आधारशिला जीवन मूल्य होते हैं, आचार व्यवहार और संस्कार होते हैं। उसके आधारशिला पर निश्चित रूप में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबको इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं और अनीता जी आपको धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you. I now invite Vice Chancellor Dr. Rajni Gupte to deliver the vote of thanks. Thank you, Dr. Anita. Respected Dr. Mazumdar, the Chancellor of the Symbiosis International University, our esteemed chief guest today, the Honorable Minister of Education, Government of India, Shri Ramesh Pokhriyal ji, Dr. Vidya, the Pro-Chancellor of the University,
Other distinguished speakers, Dr. Nasa, Member Secretary, National Board of Accreditation of India, Dr. Pankaj Mittal, the Secretary General, Association of Indian Universities, India, Professor Ramon, President of Brial Global, Spain, Dr. Arnold, Global Lead for Tertiary Education, World Bank, my esteemed Vice Chancellor colleagues from across the nation, our international guests and speakers from over the speakers who will be speaking to us over the next few days, deans, directors, faculty members from Symbiosis and elsewhere. I saw so many members from across the globe. So everyone present here, a very warm welcome to all of you. Very many people think that the vote of thanks is a mere formality. But I love what William Arthur Ward once said, and I quote, "Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it." So it's important for me on behalf of our university to express my heartfelt gratitude to each and every one of you. I truly deem it an honor and a privilege. Honorable Minister, sir, your talk, as always, was truly inspiring. You mentioned that in the Indian culture, it is well recognized that it is only education that empowers you and creates a good human being. Indian knowledge systems in different domains can be leveraged to focus on internationalization. You spoke about the Study in India initiative that can showcase India to international students. It is true that in difficult times, we need to find ways of overcoming hurdles. And in looking at the opportunities offered by the NEP, we open up a host of opportunities hitherto unexplored. Thank you very much, sir, for your extremely valuable address. It will set the agenda for our work going ahead. We at Symbiosis are truly happy to be thought leaders in internationalization in India. I'm happy to inform you, sir, that the deliberations on the implementation of NEP are going on in full swing in our NEP, and we truly look forward to the years ahead. Dr. Nasa, your mention of the ongoing challenges arising out of COVID, the adoption of digital education, the emphasis on collaboration in teaching and research, and specifically interactive learning and the quality of learning and assessment really set the tone for the deliberation for the coming 3 days of this conference. Thank you so much for sharing your insights with us. Dr. Mittal, I have over the past year admired the way you have led AIU, and today your thoughts on the role of NEP in leveraging blended education for internationalization were truly thought-provoking. Thank you ever so much for continuing your association with us for this annual conference year after year. Professor Ramon, we thank you for taking the time to be with us today, representing the EU at the inaugural. We were delighted to hear you speak of Vasudhaiva Kutumbakam. Your thoughts truly resonated with us. Dr. Arnold, it was a pleasure to listen to your views on how COVID has forced us to come out of our comfort zone. We look forward to seeing the report that you spoke of on the future of tertiary education, which the World Bank will be bringing out. Let me end here by acknowledging the various collaborators, AIU, Brial Global, the World Bank, our sponsors for this event, and of course, the organizing team led by Dr. Anita, the Symbiosis Center for International Education, the IT support team, all of whose immense hard work deserves our heartfelt thanks. This year, since you are not here in person, we shall be missing the wonderful culinary delights that have been the key feature of the conference in earlier years. But I'm sure we will meet again soon in person, and we hope to look forward to your presence always. We have, however, a veritable intellectual feast ahead of us today and over the next 2 days. So hoping that we have some great deliberations. Thank you one and all once again. Thank you, Dr. Rajni. Thank you, sir. Thank you, everyone, for attending this inaugural. We're extremely conscious of the fact that you've culled out time to be with us each day for IIT 2021.